بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم آپریٹرز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ آپریٹر 4 قسم کے تھے: لاجیکل، ارتھمیٹک، اسائنمنٹ اینڈ ریلیشنل آپریٹرز تھے۔ آج ہم کنڈیشنل آپریٹرز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کنڈیشنل آپریٹرز وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی کنڈیشن لگائی جاتی ہے، جیسے کنٹرول سٹیٹمنٹ ایک آپریٹر ہے، ایف سٹیٹمنٹ ایک آپریٹر ہے، اسی طرح ایف ایلس سٹیٹمنٹ ہے، اور نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنٹرول سٹیٹمنٹ کی۔ تو اسٹوڈنٹس، we use a control statement to control execution of a program۔ جب ہم کسی پروگرام کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کنٹرول سٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ There are 3 types of control statements۔ کنٹرول سٹیٹمنٹس 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ That is number 1 sequential control statement، number 2 selection control statement، number 3 ریپیٹیشن کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ تو یہ 3 قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم سی پروگرامنگ کرتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ کی۔ تو اسٹوڈنٹس، سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ all statements are executed in the same sequence as written in the program۔ کسی سی پروگرام میں ہم جب پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جس ترتیب سے ہم سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں اسی سٹیٹمنٹ سے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، یعنی ہمارا پروگرام اسی کے مطابق رن ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے جو سٹیٹمنٹ پہلے لکھی، جو ہم نے اسے پہلے کہا کہ ہمیں یہ چیز پہلے آؤٹ پٹ میں چاہیے، وہ پہلے آئے گی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ یعنی جس سیکوینس میں ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی ہیں اسی سیکوینس میں وہ ایگزیکیوشن ہوگی۔ سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ از دا ڈیفالٹ کنٹرول اسٹرکچر ان سی لینگویج۔ یہ یاد رکھیں کہ سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بائی ڈیفالٹ سی لینگویج کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی کنڈیشن نہیں لگائیں گے تو سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ خود ہی وہ لگ جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ بائی ڈیفالٹ سی پروگرام کے اندر موجود ہوتی ہے۔ All of the statements are executed in the same sequence as written in the program۔ جیسے ہم پروگرام میں لکھیں گے اسی سیکوینس سے وہ ہمارا پروگرام رن ہوگا۔ دوسری جو سٹیٹمنٹ ہے سلیکشن کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ ہم کنٹرول سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلا جو کنٹرول سٹیٹمنٹ تھی اس کی بات کی ہے، وہ ہے سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ دوسری قسم کی جو کنٹرول سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے سلیکشن کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ یعنی اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں کہ یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پہلے رن ہو۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا اسٹیٹمنٹس دیٹ ہیلپ اس ٹو ڈیسائڈ وچ اسٹیٹمنٹ از ایگزیکیوٹیڈ نیکسٹ on the basis of the given condition is called selection control statement۔ ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم یہ کر سکیں کہ جو ایک جو رن ہوا ہے اس کے بعد دوسری جو کون سی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ رن ہو۔ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس 3-4 ہیں تو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی کے بعد تیسری چلے، یا پہلی کے بعد دوسری چلے، یا پہلی کے بعد چوتھی چلے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سا عمل پہلے ہو، کون سا عمل بعد میں ہو، تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلیکشن کنٹرول سٹیٹمنٹ۔ یعنی ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رن ہوگی اس کے بعد۔ There are 2 types of selection control statement۔ اب selection control statement جو ہیں وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ٹائپ آف if statement۔ if statement کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 if statement اور نمبر 2 if else statement۔
if स्टेटमेंट और if else स्टेटमेंट। तो if स्टेटमेंट क्या होती है? तो स्टूडेंट्स C लैंग्वेज प्रोवाइड्स अस if स्टेटमेंट in which we specify a condition। हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, हम एक कंडीशन मखसूस करते हैं, मुख्तस करते हैं और उसको बताते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है हमें ये इस स्टेटमेंट में रन होना है एंड एसोसिएट अ कोड टू इट। जो हम इफ कंडीशन लगाते हैं इस स्टेटमेंट के बाद, हम ये उसको कहते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद उसके साथ जो एसोसिएटेड कोड है वो रन होना चाहिए, वो चलना चाहिए। द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफिक कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन जो हमने लगाई है अगर वो सही है तो फिर तो वो क्या होगा, वो रन होगी, कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। The code gets executed if the specific condition turns out to be true। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो रन होगा वो कोड, और अगर तो वो फुलफिल नहीं होती, वो कंडीशन जो है वो पूरी नहीं है, तो वो जो प्रोग्राम है, वो जो कोड है वो रन नहीं होगा। अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फुलफिल नहीं होती यानी वो कंडीशन, वो शर्त पूरी नहीं होती, तो वो कोड रन नहीं होगा। जनरल स्टेटमेंट या जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, इफ स्टेटमेंट की जो जनरल स्ट्रक्चर है, आम जो जनरली हम लिखते हैं, जो अमूमी जो उसकी साख्त होती है वो इस तरह से है। इफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि शर्त क्या है, और उसके साथ एसोसिएटेड कोड, फिर उसके साथ एक कोड जो है उसको एसोसिएट कर देते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन विद इन द पैरेंथेसिस विद इन द स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर एसोसिएटेड कोड। कंपोनेंट ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके हिस्से कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स जो हैं स्टेटमेंट्स के, नंबर पहला जो कंपोनेंट है वो है इफ, अगर। इफ इज अ कीवर्ड। हमने कीवर्ड पढ़े हैं, कितने कीवर्ड हैं? 32। ये 32 कीवर्ड्स हैं, उनमें से इफ एक है। इफ इज अ कीवर्ड दैट इज फॉलोड बाय अ कंडीशन इनसाइड पैरेंथेसिस। ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन हम लगाते हैं। इफ के बाद स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाते हैं, वो शर्त लगाते हैं कि ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये पूरी होगी तो आगे कोड जो है वो उसने एग्जीक्यूट होना है। तो इफ स्टेटमेंट की जो पहला उसका हिस्सा है वो है इफ, और दूसरा हिस्सा वो है कंडीशन, यानी वो शर्त क्या है, वो जो भी हम उस पर कंडीशन लगाएंगे वो दूसरा उसका हिस्सा होता है। अ कंडीशन कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन और कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। ये जो कंडीशन है ये कोई भी हो सकती है, और वो वैलिड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, यानी या तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी कोई, या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, या रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी, या इन सब को मिला के एक इनकी कम्बिनेशन भी बना के हम एक उसके साथ कंडीशन लगा सकते हैं। तो वैलिड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो वैलिड नहीं है, जो सही नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है, जिसको सी लैंग्वेज जो है वो फॉलो नहीं करती। वो कंडीशन हमारी, प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा। तो कंडीशन वो होनी चाहिए जो वैलिड हो। वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, वो रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और इनकी कम्बिनेशन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ मिसालें देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल्स ऑफ सम वैलिड एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशन जो वैलिड हैं उनकी मिसालें। नंबर 1, 5 जो है वो इंटीजर है, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ट्रू। और इसी तरह 5 + 4 ये भी वैलिड है, तो इसका 5 + 4 इसमें ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है, 5 और 4 जो है वो इंटीजर्स हैं, ये ट्रू कंडीशन है, यानी ये लगा सकते हैं। 5 - 5 फॉल्स है ये कंडीशन, लेकिन हम इसको लगा सकते हैं क्योंकि एज ए
कंडीशन ये ठीक है, इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 4 ये ट्रू है, ये हम कंडीशन लगा सकते हैं। 5 इज़ इक्वल टू 4 ये 5 इक्वल टू 4 नहीं होता, फॉल्स है, लेकिन कंडीशन हम यानी एक्सप्रेशन वैलिड है। 5 इज इक्वल टू 4 एक्सप्रेशन वैलिड है, रिजल्ट इसका चाहे फॉल्स है। तो हमने तो एक्सप्रेशन देखनी है कि वो वैलिड एक्सप्रेशन है, यानी वो एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं विद इन ब्रैकेट्स, विद इन पैरेंथेसिस। इसी तरह ये एच जो है यानी ये नंबर हैं ABCDEF, एच ये उसका हिस्सा नहीं है, ये नंबरिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो असल जो एक्सप्रेशन है वो है नॉट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स 4 इज़ ग्रेटर देन 5, 4 इज़ ग्रेटर देन 5 जो है, सिर्फ अगर 4 इज़ ग्रेटर देन 5 होता तो ये क्या होता, फॉल्स होता, लेकिन इसके पहले नॉट लगा हुआ है, तो नॉट जो है उसको उलट देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो ये जो फॉल्स स्टेटमेंट थी 4 इज़ ग्रेटर देन 5, इससे पहले नॉट लगा है, तो इसका आंसर इसकी जो ट्रू इसका आ गया। तो ये भी वैलिड एक्सप्रेशन है। इसी तरह 5 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 10 इज़ लेस देन 9। अब ये दो कंडीशंस हैं, एक तो है 5 ग्रेटर देन 4 है, ये तो ठीक है, एंड 10 इज़ लेस देन 9 ये जो है फॉल्स है। तो ये एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, ये ट्रू तब होता है जब दोनों ही ट्रू होते हैं, तब ये ट्रू होता है। अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है। तो इनमें से एक पार्ट जो है वो करेक्ट है, सही है, दूसरा पार्ट जो है वो फॉल्स है। तो इसमें लॉजिकल एंड में ये शर्त है कि दोनों का ट्रू होना, जब दोनों ट्रू होंगे तब भी वो ट्रू होगा रिजल्ट, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। इसी तरह जी जो है यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 4 और ये आर ऑपरेशन है, 9 इज़ लेस देन 10, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, ये ट्रू है, और इसी तरह 9 इज़ लेस देन 10 है, ये भी ट्रू है। तो ये आर इसमें ऑपरेटर लगा हुआ है जो लॉजिकल ऑपरेटर है, और इसका आंसर जो है वो ट्रू है। तो ये सारी स्टेटमेंट जितनी हैं ए से लेकर जी तक, ये सारी की सारी वैलिड एक्सप्रेशन हैं, यानी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एनी एक्सप्रेशन दैट हैज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेट्स द ट्रू, ऐसी एक्सप्रेशन जिसको जब कैलकुलेट करेंगे और उसका आंसर नॉन ज़ीरो आए, यानी 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ज़ीरो नहीं आता, नॉन ज़ीरो आता है, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू वो होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ए एंड बी आर ट्रू एंड एक्सप्रेशन सी इज़ फॉल्स। अगर तो आंसर ज़ीरो आता है तो वो फॉल्स होती है, और अगर ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो आता है तो वो क्या होगा, वो ट्रू होगी। एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ ज़ीरो वैल्यू इज़ फॉल्स, सच एज सी डी ई एच जो है ये क्या है, फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट्स द एक्सप्रेशन कैन आल्सो इंक्लूड अ वेरिएबल, एक्सप्रेशन में हम कोई वेरिएबल भी लग सकते हैं। इफ़ अ वेरिएबल इज़ यूज्ड, the expression inside the variable is used to calculate the true and false value of an expression। तो अगर तो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर जो एक्सप्रेशन हम लगाएंगे उसको मतलब ऐसा लगाएंगे कि वो जब कैलकुलेट हो तो या ज़ीरो आए या नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू आए। तो इस तरह वो अगर नॉन ज़ीरो आती है तो वो ट्रू होगी, और अगर उसको ज़ीरो उस वेरिएबल की वैल्यू आती है तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो हम वेरिएबल को भी एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो वैलिड एक्सप्रेशन होगी। दो पार्ट हमने कहा था कि इफ़ स्टेटमेंट जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। उसमें पहला हिस्सा जो है इफ़ है और दूसरा हिस्सा कंडीशन है। तीसरा हिस्सा जो है उसका तीसरा कंपोनेंट इफ़ स्टेटमेंट का है द एसोसिएटेड कोड। कोड उसके साथ हम एक एसोसिएट करते हैं, कोड उसके साथ लगाते हैं। वो कोड जो है एसोसिएटेड कोड इज़ एनी सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एसोसिएटेड कोड जो है वो क्या हो सकता है, सी लैंग्वेज की कोई भी जो स्टेटमेंट है उसको कोड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट्स, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर एक या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स वी कैन एसोसिएट मोर देन वन स्टेटमेंट्स इनटू एन इफ़ स्टेटमेंट। हम इफ़ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं।
In case of associating more than one statements to an if statement, we have to enclose these statements inside the curly bracket block. अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ किए हैं तो फिर हमें उनको इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है. If we want to associate one statement, then it is our choice to include it in the curly bracket block or not. अगर स्टेटमेंट एक हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारा अपना चॉइस है कि हम उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस स्टेटमेंट को रखें या ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हमें रख भी दिए, कर्ली ब्रैकेट लगा भी दिए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं भी लगाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. कब? जब स्टेटमेंट एक हो. लेकिन जब स्टेटमेंट एक से ज़्यादा होंगी तो फिर हमें लाजमी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही उन्हें रखना पड़ेगा. जब दो स्टेटमेंट्स होंगी या दो से ज़्यादा होंगी तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट जो उसका मतलब मेन बॉडी के एक होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मज़ीद जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हमने उसके अंदर हमने उन स्टेटमेंट्स को लिखना है जब स्टेटमेंट्स हम एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों. जब एक ही स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर लगा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी ठीक होगा. ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है, आप इसमें देखें तो इसको देखें. ये जो लिखते हैं हम ये तो हर जब भी सी लैंग्वेज का कुछ शुरू करते हैं तो ये तो जो स्टेटमेंट है ये लिखते हैं. इस तरह वाइड मैन ये भी लिख देते हैं. ये वो जो कर्ली ब्रैकेट हैं जो मेन बॉडी के हैं, इनके अंदर हमने इंट ए वेरिएबल हमारा ए है और उसकी वैल्यू है इज इक्वल टू 12 है, और ये टर्मिनेटर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है. इफ़ अब कंडीशन लग गई है, इफ़ ए ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए और ये क्या है मॉडुलस 2, यानी जो वेरिएबल है यहाँ वेरिएबल की वैल्यू 12 है, जब हम 12 का मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस आपको पता है कि रिमाइंडर निकालने के लिए होता है इस्तेमाल. यानी जब हम किसी रकम को दूसरी से डिवाइड करते हैं, जो दो रकम बाकी बचती है ना, उसके लिए हम ये मॉडुलस का ये साइन इस्तेमाल करते हैं. तो 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी बाकी 0 बचेगा. 2 से 12 होते हैं और बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी 0 बचेगा. तो हमने उसको बताया है कि ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए. और फिर ये हमने चूँकि यहाँ स्टेटमेंट्स हम दो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दो हमने यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट फिर लगा दी. हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा होंगी तो हमें दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे. तो प्रिंट एफ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इन डबल कोट के अंदर द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू. तो वेरिएबल ए जो है उसकी क्या है, वो इवन वैल्यू है. ये 12 जो है इवन होता है, जब रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, ठीक. तो ये एक तो हमें ये रिज़ल्ट चाहिए कि हमें ये आउटपुट चाहिए जो इस डबल कोट के अंदर होता है ना, वो हमारी आउटपुट वो शो होती है. तो डबल कोट के अंदर ये है द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, और उसके बाद ये हमने इसको बंद कर दिया डबल कोट को, और फिर ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया. दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट एफ, वो हमें चाहिए नई लाइन में चाहिए, न्यू लाइन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ये हमने रिमार्क्स दिए हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद फुल स्टॉप और फिर डबल कोट और फिर ब्रैकेट बंद और फिर टर्मिनेटर. अब ये ब्रैकेट जो यहाँ से शुरू किया था इसको यहाँ ये बंद कर दिया. ये ब्रैकेट जो यहाँ से इसका जो शुरू हुआ था वो ये ब्रैकेट जो हम हर प्रोग्रामिंग में लगाते हैं, जब भी लिखते हैं ये दो तो लाजमी लगाते हैं. अगर यहाँ एक स्टेटमेंट होती तो हम ये ब्रैकेट लगाते या ना लगाते फ़र्क नहीं पड़ता ना था, लगा भी देते तो भी ठीक था. तो यहाँ चूँकि दो स्टेटमेंट्स हैं इसलिए लाजमी है कि हम ये ब्रैकेट लगाएं. तो आउटपुट हमें मिलेगी क्या, ये द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, ठीक. और नई लाइन में हमने कहा है कि ये वाला प्रिंट एफ जो है इसकी आउटपुट हमें नई लाइन में चाहिए. हम नई लाइन में यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो यहाँ देखें यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये नई लाइन में आ गया, तो ये हमारे आउटपुट आ गई है, ठीक है. तो इस तरह जो है प्रोग्रामिंग करते हैं हम, इफ स्टेटमेंट इस तरह लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जब भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. ये फ्लो चार्ट है, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं. स्टार्ट, और उसके बाद इफ़ कंडीशन लग गई. इन कंडीशन अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होगा, अगर ये ट्रू है तो फिर हमारे पास ये एसोसिएटेड कोड जो है वो चलेगा, और उसके बाद हमारे पास ये
आउट पुट जो है वो निकलेगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये फॉल्स होगा, ये जो है वो इधर ये रन नहीं होगा, और फिर इस तरह हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगी ये, और इस तरह ये हमारी हम इस पे आके ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो ये फ्लो चार्ट जो है ये भी हमें बनाना होता है ताकि हमें पता चले किस तरह इफ़ कंडीशन जो है वो, ये इफ़ कंडीशन इसको चेक करती है कि जो भी डेटा उसको मिला है उसको ये इफ़ कंडीशन चेक करती है। जैसे हमने कहा है 12 मॉडुलस जो है वो 2 है और इक्वल टू 0 है, तो जब ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर 12 आएगा तो ये चलेगा, अगर 13 आ गया तो ये नहीं चलेगा। इस तरह 11 आएगा तो भी ये एसोसिएटेड कोड जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि कोड हमने लगाया है कि वो रिमाइंडर जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये था आज का प्रोग्राम जो हमने देखा है कि किस तरह जो है वो कंडीशन लगाते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद इंशाल्लाह आइंदा लेसन में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेसन तक फ़ी अमानिल्लाह।